Hello viewers, I welcome you again on my YouTube channel Literature Quest. Viewers, my today's topic is about some MCQs related to William Shakespeare's literary works. These MCQs are important for TGT, PGT, UPLT, Uttarakhand LT, and VSK, D2SB exams. And this is my third tutorial on William Shakespeare. Before that, I upload two videos on William Shakespeare. Please go and check these videos. So viewers, let's start today's video. So friends, question number 1. Who says Shakespeare has only heroines and no heroes? ऐसा किसने कहा था कि शेक्सपियर के पास केवल हीरोइंस होती हैं एंड नो हीरोज नहीं होते हैं? So we have four options: Matthew Arnold, Dr. Johnson, T.S. Eliot, and Ruskin. So the correct answer for this question is Ruskin. रस्किन ने कहा था कि शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। जैसे कि हम सबको पता है कि शेक्सपियर के जो भी प्लेज होते हैं उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि पोर्शिया, वायोला, लेडी मैकबेथ, कॉर्डिलिया, डेस्डिमोना। तो इसलिए ये जो कहा गया है इसी वजह से कहा गया है। Our second question: To whom did Shakespeare dedicate his first narrative poem Venus and Adonis? Venus and Adonis, Shakespeare's first narrative poem, published in 1593. So Shakespeare ने ये किसे डेडिकेट किया था? We have four options. The correct answer for this question is Earl of Southampton, जो कि शेक्सपियर के पैटर्न थे, उनको शेक्सपियर ने ये पोएम डेडिकेट की थी। ये भी और जो शेक्सपियर की दूसरी लॉन्ग नैरेटिव पोएम थी रेप ऑफ लुक्रेसी, द बोथ पोएम्स आर डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। Question number 3. Who ridiculed Shakespeare by saying that he knew small Latin and less Greek? रिडिक्यूल्ड का मतलब होता है उपहास यानी कि मजाक बनाना। तो शेक्सपियर को स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक किसने कहा था? क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, स्पेंसर और अर्नोल्ड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेन जॉनसन। Question number 4. The phrase "What's in a name" occurs in which of the following play? Othello, Hamlet, Romeo and Juliet, and Julius Caesar. The correct answer for this question is Romeo and Juliet. The complete phrase is "What's in a name that which we call a rose by any other name would you smell as sweet." So let's go ahead. Our fifth question: Who has written Tales from Shakespeare? दोस्तों, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एक किताब थी जो शेक्सपियर पे लिखी गई थी 1807 पे, और वो लिखी थी चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब ने। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 6. इन विच प्ले डज शेक्सपियर अटैक्स द प्योरिटन्स? शेक्सपियर ने प्योरिटन्स पे कौन से प्ले में अटैक किया था? So the correct answer for this question is option number 2, 12th Night। एक सैटारिकल अटैक किया गया था शेक्सपियर के द्वारा इस प्ले में प्योरिटन्स पे। Our next question, question number 7. Age cannot wither her, not custom sale. About whom are these lines spoken? Age cannot wither her, not custom sale. ये जो लाइनें हैं ये इन चारों में से किस पे बोली गई हैं? तो द करेक्ट आंसर, इसका जो सही आंसर है वो है क्लियोपेट्रा। एंटोनियो ने बोला है क्लियोपेट्रा के बारे में कि क्लियोपेट्रा को उस समय रोम की सबसे सुंदर लड़की माना जाता था, इसलिए ऐसा उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8. इमोजिन, इमोजिन एक कैरेक्टर है शेक्सपियर के प्ले का। इज द हीरोइन ऑफ विच प्ले? सिम्बेलाइन, पेरिक्लस, विंटर्स टेल एंड टेम्पेस्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिम्बेलाइज। नाउ question number 9. Who has written the critical book Character of Shakespeare's Plays? Character of Shakespeare Play ये बुक किसने लिखी थी? The correct answer is William Hazlitt. Option number 3, William Hazlitt. Who is the author of Preface to Shakespeare? Preface to Shakespeare ये भी एक बुक है, इनके author कौन है? The author of Preface to Shakespeare is Dr. Johnson. Our next question, question number 11.
नेम द प्ले इन विच हीरो एंड हीरोइन डाइड टुगेदर। इन चारों प्लेस में से कौन से प्ले में हीरो एंड हीरोइन जो है वो साथ में मर जाते हैं, उनकी साथ में डेथ हो जाती है। वैसे तो शेक्सपियर के सभी प्लेस में ऐसा होता है कि हीरोइन हीरोइन दोनों ही मर जाते हैं, हेमलेट में भी हुआ था, ओथेलो में भी हुआ था, लेकिन इन चारों प्लेस में से कौन सा ऐसा प्लेस है जिसमें वो लोग साथ में मरते हैं? तो द करेक्ट आंसर इज रोमियो एंड जूलियट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमन प्ले? शेक्सपियर ने ट्रेजिक प्ले लिखे हैं, हिस्टोरिकल प्ले लिखे हैं, रोमांसेस कॉमेडी लिखे हैं और साथ ही उन्होंने रोमन प्ले भी लिखे हैं। तो इन तीनों में से कौन सा एक रोमन प्ले है? द करेक्ट आंसर इज टीमोन्स ऑफ एथेंस। दोस्तों, इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोमन प्ले। तो जो शेक्सपियर के रोमन प्ले हैं वो हैं एंटोनियन क्लियोपेट्रा, कॉरियोलेनस एंड टाइटस एंड्रोनिकस। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन इन विच प्ले दीज लाइन्स अकर्स। ये बहुत ही फेमस लाइन्स हैं हेमलेट की, जो कि एक रिवेंज ट्रेजिडी है। हेमलेट जो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है उनके बारे में ये पूरा प्ले है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द मैसेंजर ऑफ फेरीज इन द टेम्पेस्ट। फेरिस का जो मैसेंजर है वो टेम्पेस्ट में कौन होता है? कैलिबन, जूनो, एरियल और आइरिस। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एरियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज रेप ऑफ ल्यूक्रेसी? रेप ऑफ ल्यूक्रेसी क्या है? रेप ऑफ ल्यूक्रेसी एक सोनेट है, नैरेटिव पोयम है, कॉमेडी है या प्ले है? सो रेप ऑफ ल्यूक्रेसी एक नैरेटिव पोयम है, लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, जो कि 1594 में पब्लिश हुई थी आफ्टर 1 year ऑफ Venus and Adonis. And question number 16, in which play does Hermione appears as heroine? कौन से प्ले में जो हरमोइन है वो हीरोइन के रूप में आई थी? So the correct answer for this question is The Winter's Tale. The Winter's Tale प्ले में जो हरमोइन है वो हीरोइन थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, he was not of all age but for all times nature herself was proud of his design. Who praises Shakespeare in these words? He, ये जो शब्द हैं he was not of all age, ये शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था? सबसे पहले तो ये जो शब्द हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि शेक्सपियर किसी एक एज के नहीं बल्कि सभी एजेस के प्ले राइट हैं, ग्रेट ड्रामेटिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बेन जॉनसन है। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए ये लाइन कही थी। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड? शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं, शेक्सपियर के टोटल नंबर में 154 सोनेट्स हैं। ये सोनेट्स कब पब्लिश हुए थे? ये सारे जो सोनेट्स हैं ये 1609 में पब्लिश हुए थे। उनके सभी सोनेट्स 154 सोनेट 1609 में पब्लिश हुए थे, और उनके जो प्ले हैं वो 1623 में जो उनका फर्स्ट फोलियो था तब पब्लिश हुए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट अटर्ड बाय। ये जो लाइन है लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये किसने कही थी? किस प्ले में कही गई है? हेमलेट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ या ओथेलो। सो दिस लाइन इज स्पोकन बाय मैकबेथ। मैकबेथ के लिए लाइन कही थी व्हेन लेडी मैकबेथ किल्स हरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 20, cowards die many times before their death. These line in this play. ये लाइंस कौन से प्ले में है? तो द करेक्ट आंसर है जूलियस सीजर। ये लाइन जूलियस सीजर में है, जब जूलियस सीजर की वाइफ उसको मना करती है कि आज वो दरबार में ना जाए, लेकिन वो मानता नहीं है, तब वो कहता है कि cowards die many times before their death. सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सो मैं आगे भी शेक्सपियर के कुछ एमसीक्यूज लाऊंगी, साथ ही साथ अदर राइटर्स के भी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, share and subscribe my YouTube channel Literature Quest, and please don't forget to press the bell icon to get notifications for my upcoming videos.